Here is an exercise for you. G is a group generated by two elements A and B, and the set of relations are A cube is equal to B square is equal to AB square is equal to E. And its object is S3, and the elements of S3 are identity A square, B, AB, and A square B. And the question is, H is given a group with elements identity A square, and we have to compute the normalizer of H in G in this group. The simple remark observation, it is easy to see that every subgroup H is contained in its normalizer. And here is a theorem which is related to the application of Lagrange theorem. Lagrange theorem की आपको statement याद होगी that order and index of a subgroup divides the order of the group. Let a group G contains elements A and B of order M and N respectively, where M and N are relatively prime, that is greatest common divisor of M and N is 1, and A and B commute each other. Then we have to prove that G contains an element of order Mn. For the proof, we construct a subgroup H, which is cyclic and generated by the element A, and K is also cyclic, which is generated by the element B. And obviously, because A has order M, so this subgroup contains M elements, which is A power 1, A power 2, A power 3, and so on, A power M. And order of this subgroup is N, and it contains N elements, that is B power 1, B power 2, and so on, B power N. So these two are subgroups of G, and we know that intersection of two subgroups is always a subgroup. And using Lagrange theorem, the order of this subgroup, that is order of H intersection K, divides order of H and order of K, because this subgroup because this group is subgroup of both subgroups H and K, so its order is a divisor of these two positive integers, order of H and order of K. So it is a common divisor of these two numbers. That means it is a divisor of their greatest common divisor, but the greatest common divisor of M and N is equal to 1. That means this number divides 1. So 1 has only two divisors, 1 and minus 1, because order is strictly positive integer, so order cannot be negative. So that means the order of the subgroup H intersection K is exactly 1, but that means it contains only the identity element. So at this point, what we have, that H intersection K is the only identity element. Okay, let's compute an element C. C is the product of A and B or B and A, because A and B commute, so AB is equal to BA. Let's compute the C power Mn. That means AB power Mn. That means AB is multiplied to itself Mn times, because A and B commute. So repeatedly applying AB is equal to BA, we can write elements of A multiplied with elements of B, and in both parts we have Mn copies and Mn copies. We can write this as AM and then whole power n, and this Bn and then whole power n. Because order of A is M, that means A power M is identity, and order of B is n, that means B power n is identity, and so Mn C power Mn is identity. So a finite power of C gives identity, that means order of C is finite, and order of C is in fact a divisor of Mn. So let's prove that, let's say the order of C is K, and we shall prove that K is not a proper divisor of Mn, but K is exactly equal to Mn. Because if K is a divisor of Mn, then C power K is equal to identity using the definition of the order of C, but C power K is equal to A power K and B power K, and we can write it as shifting B power K on the left hand side. We can write as A power K is equal to B inverse power K. Now since A was in H, so A power K is in H,
So this element belongs to H. Since B belongs to K, so B inverse belongs to K. So that means B inverse whole power belongs to K. So on left hand side we have an element that belongs to H. On right hand side we have an element that belongs to K. So that means this A power K, that is in the intersection of H and K. But H intersection K is equal to identity. That means A power K is equal to identity. And similarly, following the same arguments, we can say that P power K is equal to identity. So that means order of A divides K and order of B divides K. That means M divides K and N divides K. That's contradiction, because here we were saying that K is a divisor of M and N, and now we are saying that M is a divisor of K and N is a divisor of K. So here's contradiction. And contradiction appear because we assume that K is a proper divisor of Mn, and the conclusion is K is exactly equal to Mn. So our final conclusion is order of C is Mn. So C was the required element we were trying to find out, and K is equal to Mn, and C has order Mn. Like the notion of normalizer, here we start defining centralizer of a group. At H is a subgroup of G, then we read this notation as centralizer of H in G is called centralizer of H in G with the definition. It is the following set. It consists of all those elements of G which commute with every element of H. अगर आप इसको कंपेयर नॉर्मलाइजर से, तो नॉर्मलाइजर में जो जी एलिमेंट है वो सेट के साथ जो है कम्यूट करता है, लेकिन सेंट्रलाइजर में ये सेट के साथ कम्यूट नहीं करता, बल्कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है हर एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली ये कम्यूट करता है. सो हियर्स डेफिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजर. The simple exercise. Let H is a subgroup of G, then prove that centralizer of H in G is a subgroup of G. So ये जैसे हमने नॉर्मलाइजर के केस में प्रूव किया था, बिल्कुल उसी तरह सिमिलर लाइंस पे, पैरेलल लाइंस पे इसका प्रूफ है. आप देख सकते हैं, इसको मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज इट्स सिमिलर टू द केस ऑफ नॉर्मलाइजर. रिमार्क. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम नॉर्मलाइजर डिफाइन किया था सब ग्रुप का, और इस लेक्चर में हमने सेंट्रलाइजर डिफाइन किया सब ग्रुप का. लास्ट में नहीं, हम सिर्फ सब ग्रुप के लेवल पे ही नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर डिफाइन करते हैं, हम एलिमेंट के लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन लेट्स सी क्या होता है. कैन वी डिफाइन नॉर्मलाइजर एंड सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप G? Let A is arbitrary element of G, then normalizer of A in G is the collection of those elements such that G A is equal to AG. तो यहाँ पे हमने इनफैक्ट H को रिप्लेस किया है एक एलिमेंट A से. And centralizer of A in G means collection of all those elements जो कि कम्यूट करते हैं A के साथ. So element के लेवल पे normalizer and centralizer they coincide. Thus normalizer of A in G coincides with the centralizer of A in G. Now we define the center of a group. Center of a group is defined as collection of all the elements of G which commute with each element of G. यहाँ पे please add कर लें such that Gx is equal to Xg, and this happens for all x belongs to G. And a simple exercise to prove that center of G is a subgroup of G. जैसे हम नॉर्मल का प्रूव किया था, बिल्कुल इस तरह से का भी प्रूफ है, और शायद आगे के लेक्चर में इसका प्रूफ जो हम इंक्लूड भी कर लें. At this moment you have to check the following examples. The first one is आपको प्रूव करना है कि अगर ग्रुप अबिलियन है तो उसका जो सेंटर है दैट इज फुल G. सेकेंड आपको प्रूव करना है इफ वी टेक G एज द ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन यूनिट्स दैट इज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I प्लस माइनस J एंड प्लस माइनस K, देन सेंटर ऑफ दिस ग्रुप इज 1 माइनस 1. दैट मीन्स सिर्फ 1 और माइनस 1 ही वो एलिमेंट हैं जो कि ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं. और ये बहुत ईजी है देखना है बिकॉज I कम्यूट नहीं करता, J के साथ I कम्यूट नहीं करता, K के साथ I कैनॉट बी इन द सेंटर. J कम्यूट नहीं करता I के साथ, J कैनॉट बी इन द सेंटर.
K कम्यूट नहीं करता J के साथ, K cannot be in the center of the group. So only 1 and -1 commute with all other elements of the group. And the third example is the S3, non-abelian group with 6 elements. आपको प्रूव करना है कि इस ग्रुप का जो सेंटर है that contains only one element, that is identity. इसके लिए आपने केयरलेस टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं ऐसी कौन सी रोज हैं जो अपने कॉलम के से कोइंसाइड करती हैं. ठीक है, इफ फर्स्ट रो कोइंसाइड विद द फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स कि जो एलिमेंट में जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट आ रहा है जिससे आप सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इन द सेंटर. लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ आइडेंटिटी के अलावा सॉरी सिर्फ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कोइंसाइड करते हैं सेकंड कॉलम और सेकंड रो में, बिकॉज ए था तो वो आपके डिफरेंट आ रहे होंगे. दैट मीन्स कि ए इज़ नॉट इन द सेंटर ऑफ S3. ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप, और बहुत इंपॉर्टेंट सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप के अंदर. A subgroup H of a group G is normal in G if G H G inverse is equal to H. ये इनफैक्ट एक तरह से हम इसका जो है वो लेफ्ट एंड राइट को एक साथ ही कंप्यूट कर देते हैं. ओके, अगर हम यहाँ पे H एज ए सब ग्रुप, अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी सिर्फ पुट कर दें एज ए सेट, then we have only one element G E G inverse which is equal to identity and that is equal to the H in this case. So it means the trivial subgroup which consists of only the identity is a normal subgroup of G for any group G. And similarly अगर हम इस H को G के साथ रिप्लेस कर दें और हम सेट कंप्यूट करें G G G inverse, so it will coincide with the group G. So that means identity and G are normal subgroups of G and they are called the trivial normal subgroups. लेकिन इस डेफिनेशन के बाद या इस रिमार्क के बाद एक जो ऑब्जर्वेशन माइंड में आती है वो यही आती है कि क्या हमारे पास कोई ऐसे ग्रुप्स पे एग्जिस्ट करते हैं जिनका कोई नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट दीज टू ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स. सो हियर इज द नोशन ऑफ द सिंपल ग्रुप. अ ग्रुप G is called normal if normal if normal subgroups of G are only identity and G itself. अगर किसी ग्रुप में सिर्फ जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं अगर वही नॉर्मल हों और उसके अलावा कोई सब ग्रुप नॉर्मल ना हो तो हम ऐसे ग्रुप को सिंपल कहेंगे. सिंपल मीन उसके अंदर जो नॉर्मल सब ग्रुप कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई एग्जांपल्स ही नहीं उसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप्स की हैं. सो यहाँ से हमको एग्जांपल देखना चाहेंगे किसी सिंपल ग्रुप की. लेट G be a group of prime order P. Lagrange theorem implies that if we have a element in G which is non-identity, different from identity, then order of A divides order of the group which is P. So because P is a prime number, so possibilities for the order of A are the following. Either order of A is equal to P. इस केस में ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा, दैट इज G is cyclic and hence abelian. The second observation is for any subgroup H of G, order of H divides order of G. तो अगर H कोई आर्बिट्रेरी सब ग्रुप G का है तो या तो उसका ऑर्डर 1 होगा और या उसका ऑर्डर जो है वो इस प्राइम नंबर P होगा. इफ H का ऑर्डर 1 है तो दैट मीन्स H इज सिंगलटन सेट, और सिंगलटन सेट जो सब ग्रुप बनाता है दैट इज ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट. एंड द सेकंड वन इज H इज इक्वल टू G इस केस में. सो इफ G इज ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर P तो उसके सिर्फ दो ही सब ग्रुप्स आते हैं, आइडेंटिटी एंड द G इटसेल्फ. तो जाहिर है नॉर्मल सब ग्रुप भी सिर्फ यही दो हैं, इनके अलावा कोई और सब ग्रुप बिकॉज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नॉर्मल होने का तो क्वेश्चन ही नहीं है. तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है सिंपल ग्रुप के. बट इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आर दोज कि G जो है वो नॉन अबिलियन हो, उसमें सिर्फ आइडेंटिटी और G ही उसके नॉर्मल सब ग्रुप्स हों और उसके बाकी सब ग्रुप्स नॉर्मल ना हों.
तो वो हमारे पास एक कोई नॉन ट्रिवियल एग्जांपल होगी। ऐसे एग्जांपल अपने कोर्स में जो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कि मेंशन की हुई हो। Okay, the next result is the center of a group G is normal subgroup of G. Let's see the proof. सेंटर की डेफिनेशन लिखी है। यहाँ पे पहले दो पार्ट्स में ये प्रूव किया है कि सेंटर ऑफ जी द सब ग्रुप ऑफ जी। इसको बहुत सिंपल अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे प्रूव किया क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम दो एलिमेंट जो इस सेट के अंदर से ले लें और हम प्रूव करें कि उनकी मल्टीप्लिकेशन भी इस ग्रुप के अंदर है, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। और सेकेंडली अगर हम इस ग्रुप के अंदर से कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें और यहाँ पे इसको प्रूव किया कि उसका इनवर्स भी इसी सेट के अंदर है, दैट मीन्स एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस इज अश्योर्ड, सो दैट मीन्स दिस सेट इज अ सब ग्रुप। ये बहुत सिंपल से रिमार्क्स हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। ओके, तो सेकंड पार्ट इज हमें ये प्रूव करना है सेंटर ऑफ जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। सो लेट्स टेक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, और बिकॉज इस ग्रुप के अंदर वही एलिमेंट इस सेट के अंदर वही एलिमेंट्स हैं जो कि जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, तो दैट मीन्स जी एक्स इज इक्वल टू एक्स सी एंड दैट होल्ड्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। बोथ साइड्स पे हमने एक्स इनवर्स मल्टीप्लाई किया, सो हियर वी हैव सो जी इज इक्वल टू एक्स जी एक्स इनवर्स। लेकिन जो ये एलिमेंट की फॉर्म है, ये एलिमेंट की फॉर्म के लिहाज से इट बिलोंग्स टू एक्स C of G and X inverse. So Z was an arbitrary element of C of G, और ये एंटर किस सेट में हो गया, X C of G X inverse में। That means C of G is a subset of this set. And similarly for the converse part, take arbitrary X G X inverse belong to this set where G belongs to the center of G. Because G center को belong करता है तो ये ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। इसका मतलब है मैं G और X इनवर्स को भी कम्यूट कर सकती हूँ। अगर हम इसको कम्यूट करेंगे तो एक्स इनवर्स एक्स सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड वी आर रिमेन विद ओनली जी। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू जी, सो इट बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी, hence this set is a part of this set, and using steric and double steric we have equality between these two sets. So x h x inverse is equal to h, and this happens for all x belongs to G, that means this subgroup is normal one. Next theorem है, let G be a group and H be a subgroup of G, then the following statements are equivalent. So इस theorem में चार statements है और हमने prove करना कि equivalent है। equivalent mean A implies B, B implies C, C implies D and then D implies A, और लास्ट में नहीं कि इसका ऑर्डर यही हो, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं that A implies C, C implies B, B implies D and D implies A. Equivalent mean any one of them implies other one. The first part, A implies B. Suppose H is normal. हमें ये सपोजिशन हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा या सपोजिशन क्या होगी, H जो है वो G में नॉर्मल है और हमें ये प्रूव करना है दैट नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G कोइंसाइड विद G। यहाँ पे हम डेफिनेशन यूज करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की, दैट G H G इनवर्स इक्वल टू H फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। वी हैव टू प्रूव दैट नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G। इसमें से एक इंक्लूजन बहुत ऑब्वियस है बिकॉज दिस वन इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप, सो सब ग्रुप होने से पहले इसका सबसेट है, सो ये इंक्लूजन तो बहुत ऑब्वियस है। जो रिवर्स इंक्लूजन है उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट G, वी हैव G H G इनवर्स इक्वल टू H, दैट इज डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप जो हमारा हाइपोथेसिस पार्ट है। ओके, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विद G फ्रॉम द राइट हैंड साइड, सो हमारे पास G H इज इक्वल टू H G, तो ये लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल आते हैं। सो G इज सच एन एलिमेंट कि अगर हम इसे लेफ्ट कोसेट कंप्यूट करें या राइट कोसेट कंप्यूट करें तो कोइंसाइड, दैट मीन्स G बिलोंग्स नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G। सो हमने G आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था बिग G से और ये एंटर हो गया नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G में, दैट मीन्स G इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G। स्टेरिक डबल स्टेरिक इम्प्लाइज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और सेकंड पार्ट, P implies C, हमारा हाइपोथेसिस ये होगा दैट नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G इज इक्वल टू G, और हमने प्रूव ये करना है कि हर लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल होता है फॉर एनी एलिमेंट G। ओके,
बी इम्प्लाइज सी पार्ट, नॉर्मलाइजर गिवन है कि जी के इक्वल है, दैट इज एवरी एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस, बिकॉज ये सेट इस सेट के इक्वल है। इसका मतलब है अगर यहाँ से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करेंगे तो इस सेट को बिलोंग करता है आर्बिट्रेरी एलिमेंट। लेकिन इस सेट की कैंडिडेसी उसका रूल ये है कि जी एच इज इक्वल टू एच जी, इसका मतलब है हर एलिमेंट ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो दिस implies every g belongs to g satisfies g is equal to g, that means हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है और मुझे प्रूव करना था। नाउ c implies d, c implies d में हमारा हाइपोथेसिस पार्ट ये होगा हर लेफ्ट कोसेट राइट के इक्वल होता है और हमें ये प्रूव करना है कि ऑन द लेवल ऑफ एलिमेंट g h g इनवर्स belongs to h। so let's see, we have g h is equal to h, ये हमारा हाइपोथेसिस पार्ट है। दिस implies for every okay, अगर हम लेफ्ट कोसेट को देखें तो इसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, g टाइम्स h वेर h इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप h, और h टाइम्स g में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, h टाइम्स g वेर h इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप h। सो फॉर एवरी h बिलोंग्स टू h देयर एग्जिस्ट h प्राइम, बिकॉज दीज टू सेट्स आर इक्वल, तो यहाँ पे हर एलिमेंट जो है वो यहाँ पे किसी एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स की फॉर्म g टाइम्स h है और यहाँ पे एलिमेंट्स की फॉर्म जो है वो सम h प्राइम टाइम्स g है। दिस implies for every h belongs to h there exists h prime such that g h is equal to h prime g। इस थोड़ी सिम्प्लीफिकेशन करेंगे, सिम्प्लीफिकेशन करने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे दैट जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच प्राइम। लेकिन ये एलिमेंट जो है वो बाय डेफिनेशन एच का है, लेकिन और ये इसके इक्वल है। तो एच का बिकॉज एच प्राइम वॉज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच, तो इसका हर आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है वो इस फॉर्म का है और ये उसको बिलोंग करता है जी एच जी इनवर्स को। इसका मतलब इसका हर आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है वो जी एच जी इनवर्स को बिलोंग करता है और ये मैं प्रूव करना था। डी इम्प्लाइज ए में हमारा सपोजिशन पार्ट है फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी वी हैव जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। सो दिस इम्प्लाइज जी एच जी इनवर्स जो सेट के अंदर बाय डेफिनेशन एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म के हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एच। फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच वी कैन राइट इट एज, हमने ये प्रूव करना है कि यहाँ हर आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है वो यहाँ मौजूद, तो यहाँ के आर्बिट्रेरी एलिमेंट का हमने एज चूज़ किया तो इस एज को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं और इसको जो है अगर हम ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा दें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यूजिंग द लॉस ऑफ ग्रुप, और इसको हम रीराइट करके यहाँ लिख सकते हैं। अब ये हमारा हाइपोथेसिस पार्ट है, ये एलिमेंट जो है वो एज को बिलोंग करता है, तो ये फुल एक्सप्रेशन जो है वो जी एच जी इनवर्स को बिलोंग करता है। सो इसका मतलब है कि एज का हर आर्बिट्रेरी एलिमेंट बिकॉज इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, सो इट मीन दिस दैट फुल सेट इज अ पार्ट ऑफ जी एच जी इनवर्स, और ये मैं प्रूव करना था। Example G is abelian implies that every subgroup of G is normal because every left coset, इस केस में अगर हमको लेफ्ट कोसेट कंप्यूट करें तो उसके अंदर एलिमेंट्स की फॉर्म g टाइम्स h है, बिकॉज g abelian है तो हर दो एलिमेंट कम्यूट करते हैं, आप इसको कम्यूट करके h टाइम g लिख सकते हैं एंड h रन्स ओवर ऑल एलिमेंट्स ऑफ h। तो सिंपली हमारे पास डेफिनेशन जो सेट है वो h g की है इज इक्वल टू राइट कोसेट, बिकॉज हर लेफ्ट कोसेट हर राइट के इक्वल आ रहा है, तो अबेलियन के केस में उसका हर सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, if being normal subgroup is not a transitive relation, that means if H is a normal subgroup of K and K is normal subgroup of G, this doesn't imply that H is normal in G। एक काउंटर एग्जाम्पल के लिए ये मेंशन किया हुआ है D8 डायहेड्रल ग्रुप है of order 8, H is a subgroup with elements identity and E square, K is a subgroup with elements identity a square and a cube, and G is itself D8। आप इसको चेक कर सकते हैं कि H is a normal in K and K is normal in G, but H is not normal in G। आपके पास एक टेलर्स टेबल कंस्ट्रक्ट किया, आप वहाँ से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। Here is a simple theorem that intersection of any collection of normal subgroups of a group G
इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर आपके पास कलेक्शन है नॉर्मल सब ग्रुप्स की और आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसकी भी प्रॉपर्टी वही रहती है जो कि उसके अंदर जो है वो पार्ट्स की रहती है। लेट ओमेगा इज ए कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स, इसमें से हर एक एच आई जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। कैपिटल एन को हमने डिनोट किया इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स और हमें इसको प्रूव करना है कि नॉर्मल है और ये बहुत सिंपल इसकी वर्किंग है। यहाँ पे एक रिमार्क में मेंशन करना चाहूँगी, पीछे हमने जो रिजल्ट जो थ्योरम जो है वो डिस्कस किया है, इसमें ये चारों स्टेटमेंट्स जो इक्विवेलेंट हैं, जब हम किसी रिजल्ट में कुछ स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रूव कर लेते हैं इसका मतलब होता है कि सबका मीनिंग जो है वो एक ही है। अब इसमें ए पार्ट में हमने देखा कि ए इज़ नॉर्मल इन जी, सो बिकॉज ऑल दिस फोर स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, इसका मतलब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आप जो यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ की उसको भी यूज़ कर सकते हैं, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो नॉर्मल सब ग्रुप डेफिनेशन के लिए हम यहाँ पे चार तरह के डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑल आर इक्विवेलेंट, उन सबका मीनिंग जो है वो एक ही है। Here is a result. A subgroup of index 2 is normal subgroup of G. इसको हम प्रूव तो देखते ही हैं लेकिन आप इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं इस थ्योरम को। इसके अंदर अगर आप एज का इंडेक्स के अंदर कंप्यूट करें तो वो 2 आएगा, तो दैट मीन्स एज इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के। और के का इंडेक्स भी D8 के अंदर जो है वो 2 है, तो दैट मीन्स के इज नॉर्मल इन जी। ओके, लेट्स सी द प्रूफ। लेट्स टेक अ सब ग्रुप एच इन जी, हमारे पास गिवन है कि इसका जो इंडेक्स है वो 2 है। हमें प्रूव करना है कि एज जो है वो नॉर्मल है, दैट इज हमें ये प्रूव करना है कि एज की हेल्प से कोई भी जो लेफ्ट कोसेट बनाते हैं वो राइट कोसेट के इक्वल आता है। लेट्स टेक एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू जी और हम इस x को एज से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्रूव करेंगे दैट एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। यही इनफैक्ट पर्पज है हमारे प्रूफ का। द फर्स्ट केस इज, हो सकता है x जो है एज के अंदर हो, तो इस केस में अगर हम लेफ्ट कोसेट कंप्यूट करेंगे तो वो एज के इक्वल आएगा और अगर इसका राइट कोसेट कंप्यूट करेंगे तो वो भी एज के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से जो लेफ्ट कोसेट है वो राइट कोसेट के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स एज इज नॉर्मल। या आप सेकंड डेफिनेशन ये भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ इसी इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड्स पे एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एक्स इनवर्स आ जाए बिकॉज एक्स इज इन एज, सो एक्स इनवर्स इज इन एज, सो एज टाइम्स एक्स इनवर्स जो है वो अगेन एज के इक्वल आ जाएगा। एनीवे यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि एज जो है वो नॉर्मल है। द सेकेंड पार्ट इज, अगर हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट जी से चूज़ किया है वो एज के अंदर नहीं है लेकिन जी के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, जब हम लेफ्ट कोसेट डिकम्पोजिशन बनाएंगे जी की तो वो इस फॉर्म की बनेगी, लेकिन अगर हम जी की राइट डिकम्पोजिशन बनाएंगे तो इस फॉर्म की बनेगी। नाउ कंपेयर दिस डिकम्पोजिशन, इनफैक्ट ये जो सेट है ये एग्जैक्टली एज के इक्वल है और जो ये सेट है ये भी एग्जैक्टली एज के इक्वल है और इसमें भी जी के सारे एलिमेंट्स राइट किए हुए हैं इन द सेट ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स, और यहाँ पर भी एलिमेंट्स ऑफ जी आर रिटन एज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब ये सेट जो है वो इस सेट के इक्वल है, तो द ओनली पॉसिबिलिटीज कि हमारे पास जो ये सेट है वो इस सेट के इक्वल है, दैट इज एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, दैट मीन्स एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये एक सिंपल सा रिजल्ट है। इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 is normal in G if and only if A belongs to the center of G. So H is normal in G if and only if कि अगर हम इसे लेफ्ट कोसेट कंप्यूट करें तो वो किसके इक्वल आता है, G कॉमा जी ए, और अगर हम इसे राइट कोसेट कंप्यूट करें तो वो G कॉमा ए जी। तो अगर ये नॉर्मल है तो लेफ्ट कोसेट शुड बी इक्वल टू राइट कोसेट, इट मीन्स ये G तो इस G के इक्वल हो गया, दैट मीन्स जी ए इज इक्वल टू ए जी। लेकिन this G is in fact arbitrary element of the group G और ये एक पर्टिकुलर फिक्स एलिमेंट है, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि G के हर एलिमेंट से कम्यूट करता है, दैट मीन्स A बिलोंग टू सेंटर ऑफ G। और अगर आप इन आर्गुमेंट को रिवर्स भी रीड करें तब भी करेक्ट है, तो दैट मीन्स ये जो रिजल्ट है वो इफ एंड ओनली के साथ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स इज नॉर्मल सब ग्रुप। पहले तो ये देखना चाहिए अगर हमारे पास दो सब ग्रुप्स H और K नॉर्मल हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो कम्यूट करती है
और कम्यूट करने की वजह से बिकॉज हमारे पास एक हमने रिजल्ट डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ग्रुप्स। तो अगर एच और के दो सब ग्रुप्स हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाती है इफ एंड ओनली द ग्रुप्स परम्यूट और द ग्रुप्स कम्यूट। यहाँ पे उसका प्रूफ है और यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट का प्रूफ है कि इसको प्रूफ करना है कि एच के नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है एक ग्रुप तो इसका मतलब इसका हर लेफ्ट कोसेट राइट के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसका लेफ्ट कोसेट कंप्यूट करें तो हम इसको जी टाइम्स एच लिख सकते हैं। बिकॉज एच नॉर्मल है तो जी एच को हम ए जी लिख सकते हैं। अगेन बिकॉज के नॉर्मल है तो हम जी के को के जी लिख सकते हैं। सो अगर आप लेफ्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर करें एक्सप्रेशन को तो द लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द राइट कोसेट दैट मीन्स एच के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो वो क्लोज होता है नॉर्मल सब ग्रुप का।